application window. I am just sharing my application window. हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ओके, sir. Yes, sir. ये ओके, थैंक यू। और टेक्स्ट भी आपको अच्छे बड़े में ही दिख रहे होंगे। फाइन। सो हम लोगों ने कल बेसिक सीक्वेंस पढ़ा था, अब आज हम उसको चेक करते हैं बेसिक सीक्वेंस से। अब हम लिस्ट पर आते हैं। तो एक फंक्शन मैंने कल पढ़ाया था, मैं उसको वहीं से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज बेसिक सीक्वेंस एंड सो ऑन। सो अब देखिएगा, हमने जब सीक्वेंस यूज करी थी तो इस सीक्वेंस में हमारे पास वेट, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। जस्ट वेट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है क्या? ओके, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। फाइन। सो ओके, फाइन। सो हमारे पास एक लिस्ट, एक फंक्शन था दैट इज नोन एज लिस्ट। तो मेरे पास अगर कोई एक स्ट्रिंग आ रही है तो उस स्ट्रिंग को मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना था, मतलब एक एक पर्टिकुलर एक एक आइटम में उसको ब्रेक करना था। तो हम सिर्फ सिंपल एज ए लिस्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और लिस्ट फंक्शन कॉल करने पर मैंने यहाँ पर सो इस लिस्ट में हम जैसे ही मैंने लिस्ट फंक्शन कॉल करा तो हमारे पास आइटम्स यहाँ पर अलग अलग आइटम आ गए, दैट इज HELLO, हमारे पास अलग अलग एंटिटीज आ गई। नाउ this list is a sequence and these lists are usually mutable. So what do we mean by this mutable? That is, we can change its items. We are having two types of sequences, basically. First is list and second one is tuple. So lists are mutable and tuples are not mutable. We can't change its item. So in case of list, लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होगी? अगर आपको सिंपल सा डिफरेंस देखना है तो जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है ना, दिस इज लिस्ट, और जिनके एंड में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा, दिस इज आर टपल। सो टपल्स आर नॉट इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। सो हम अभी जब हम म्यूटेबल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स से वी आर हैविंग एन आइटम दैट सॉरी list. So this list contains x equals to 1 1 2 1. So it contains three items, numeric integer items. So I'm just printing my list. So this is a way, this is a one way to create a list, this is another way to create a list. So this is a simple definition how we can create a list. So here I created a list with containing three items 1 to 1, and I'm just printing my list. So this is printing x, so my output will be 1 to 1. Now I like to update the item of this list x on the second position. So I'll put x1 equals to 9, and again printing whether the updation is performed or not. So this printing print x, so this is an a list. So this is now updated list. So this 2 is being replaced by 9. So this is how we can update our items, because this list are mutable. Similarly, we can update items and we can delete items too. So here we are deleting an item, so we are deleting an item from the list 1 to 10. So I'm deleting a third item, so I'm going for del keyword, then x, then 2. So it will delete the item 3 from here. So now I'm printing my list, so I'll get 1 2 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is how we can delete our item from our list. Now I'm going for um, uh, applying a slice to our list. So let's say I'm having a list, I'm converting a name, a Pearl, into a list. So I'm having a string over here, then I like to convert it into string. So this function will convert this string into a list. So it will look like this is PERL. So here we are having a list that is named is a list that contains four items, that is PERL. So these are Pearl. Then I like to slice. So I would like to change the words. From where I like to change the word? From to till end. From
third position till end. So I like to change, so I am putting right name from second position till end. What? A and R. Again, I am just creating a and R, so this creates a list A and R. So there will be a list A and R. So this is list A. So first item is A, second item is R. So I am putting a list within slicing. So again, it will reflect as a, so this A comes to the second position, and this third comes to the this R comes to the next position. So the PER changes to PEAR. So the Perl becomes peer. Any problem till now? No No, sir. response? No, sir. Okay. No, sir. Okay, fine. Thank you. So again, we are having a list. Let's say again, I am creating a list using a function, list function. So it is in Perl. Then I like to convert this Perl to Python. So what I can do is that I am replacing this string from first position, that is from second position to the last position. So I am just replacing ERL. So right from the second position to the end position, so I'll replace ERL by YTH1. So this Perl becomes Python. So I am printing this as an here as a name, so it will reflect your changes. So this is Perl becomes Python. So I am replacing ERL by YTHON. So I'm using slicing. So I'm not converting whole items. Instead, I can use slices to change in between. Again, then we are having a list that is name as one, and it contains two items like 1 and 5. Now I like to add these items 2, 3, and 4 in between 1 and 5. So what we can do is that we are adding this item on the second position till second position. So from second position to second position, I am inserting 3 items in between it. I am not going for first to second, otherwise it will replace 2. So what we can do is that we are inserting an item. So for inserting an item, what will I do is that I will put the starting and the ending position of the slice is same, so it can insert your item without affecting the next item. So what we'll get is I am inserting on the second item till second item 2, 3, 4. So I am inserting in between 1 and 5. This is 2, 3, 4. So I'll get 2, 3, 4. So any problem in this case? सर एक बार Okay, दोबारा fine. बताना। No, sir. ओके, हरेन को प्रॉब्लम है। देखो हरेन, फाइन। सो हम किसी का माइक ऑन। सो 1 और 5 मेरे पास 2 आइटम है, और जब 2 आइटम है तो मैं इसमें से कोई एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ। अब मेरे को आइटम ऐड करना है, पर जैसे ही मैं अगर स्लाइस डालता 1 to 2, तो क्या होता है, ये 1 से सेकंड पोजीशन पे कुछ आइटम ऐड कर देता, पर मेरा जो 5th था वो हट जाता है ना, क्योंकि मैं 1 to 2 करता तो 1 से 2 के बीच में ये वाली पोजीशन ये हट जाती। तो मुझको क्या है, इस पोजीशन से स्टार्ट करना था, मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट करना था और इस पोजीशन के पहले ही खत्म करना था। तो हम क्या बोलते हैं, हमने जब स्लाइसिंग बोल रहा था तो इस पोजीशन के पहले खत्म हो जाना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन से, सॉरी सेकंड पोजीशन से। दिस इज फर्स्ट, इट मींस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड पोजीशन। सो सेकंड पोजीशन से ही स्टार्ट होना चाहिए था और सेकंड पोजीशन के पहले ही खत्म होना चाहिए था। अगर इंडेक्सिंग को छोड़े तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट होना चाहिए था और फर्स्ट लोकेशन के पहले ही खत्म हो जाए, तभी हम इंसर्ट कर पाएंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हो सेकंड एलिमेंट के पहले खत्म करते तो वो हो सकता था इस 5 को रिप्लेस कर देता। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर फॉर इंसर्टिंग विल यूज अ सेम लोअर नंबर ऑफ इंडेक्स, लोअर इंडेक्स एंड हायर इंडेक्स एज अ सेम, सो इट कैन इंसर्ट 2, 3, 4 in between 1 and 5. Fine. Okay. Okay, sir. Next. Fine. Thank you. Then we are again having a list. So सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
हेलो, अब आ रही है? यस सर, यस अब आ सर। रही है। सर यस सर। ओके फाइन। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास जो स्क्रीन जो दिख रहा है दिस इज नंबर 1 to 4। तो इस 1 to 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक हमारा जो आइटम है उस आइटम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आइटम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं जैसे वहाँ पे 2 3 4 को मैंने इनपुट करा था, तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 में से मैं 1 और 4 को इनपुट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं 1 और 4 को इनपुट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है सर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर बंद हो गई। सर अब स्क्रीन चले गई। पता है सर मेरे स्क्रीन चले गई। को, मेरा सिस्टम वाला नेट गया है, कनेक्ट हो रहा है। 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट वेट करना। यस सर। फाइन, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस ओके, सर। थैंक यू। यस सर। सो मेरे पास जो स्क्रीन आ रही, मेरे पास जो डेटा आ रहा है, मेरे को रिप्लेस करना था। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 3 4 को इंसर्ट करा था, इसकी जगह पर मैं 2 3 4 मतलब अब मैं यहाँ पे इंडेक्स बढ़ा देता हूँ, दिस इज 1 to 4। इस 1 to 4 के बीच में मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एम्प्टी आइटम्स इंसर्ट कर देता हूँ। एम्प्टी आइटम्स मतलब क्या करता हूँ, इसकी जगह पे मैं नन इंसर्ट कर देता हूँ। तो हमने कल देखा था एक नन इंसर्ट करा था और एक एम्प्टी इंसर्ट करा था। नन इंसर्ट करा था तो उसने 10 बार नन इंसर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग इंसर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट में उसको हटा ही रहा हूँ। तो या तो मैं आइटम डिलीट कर सकता था, या मैं क्या कर सकता था, स्लाइस लेकर वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकता था। फाइन, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, थैंक यू। नो सर। ओके फाइन। नाउ आई एम एडिंग। सो अभी मेरे पास आइटम कितने हो रहे हैं, दिस इज 1 2 3 4 5। नाउ आई एम इंसर्टिंग। नाउ इसमें अब मेरे पास कितने आइटम हो गए, दिस इज 1 and 2। सो दिस इज 0th पोजीशन एंड दिस इज 1 पोजीशन। नाउ आई एम इंसर्टिंग ऑन द नंबर्स 2। सो दिस नंबर 2 मतलब ये क्या कर रहा है, 3rd पोजीशन पर अपना एक आइटम इंसर्ट कर रहा है। अब 3rd पोजीशन पर अपना आइटम इंसर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या थी, हमारी स्क्रीन क्या थी, हमारी स्क्रीन सॉरी हमारी जो लिस्ट थी वो लिस्ट 1 to 4 तक, सॉरी 1 और 2 दो आइटम थे, हम 3rd आइटम ऐड कर रहे हैं पॉसिबली। हेलो, हेलो। यस सर। ओके, पीछे से जिनके माइक चल रहे हैं काइंडली बंद कर दो। फाइन। सो यहाँ पर मैं जो सेकंड आइटम इंसर्ट कर रहा था, मतलब 3rd पोजीशन पे आइटम इंसर्ट कर रहा था, तो 3rd पोजीशन का आइटम मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मैंने इस लिस्ट का बाउंड क्या कर रखा था, दो दो ही बना रखा है। मतलब इसकी लिस्ट की साइज अब 2 ही बची है, तो तीसरा आइटम उसमें ऐड नहीं कर सकता। तो हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन, पर लास्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो लास्ट में ऐड करने के लिए अब हमारे पास फंक्शन आया, दिस इज नंबर्स डॉट अपेंड 6। तो बाय डिफॉल्ट वो सेकंड नंबर की पोजीशन पर वैल्यू ऐड कर देगा। सो वी आर हैविंग 3 फंक्शंस। हम कुछ फंक्शंस कर सकते हैं, दैट इज हम इंसर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन पर, हम डिलीट कर सकते हैं कोई आइटम, हम इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइस से, हम डिलीट कर सकते हैं स्लाइस से, पर हम आखिरी में ऐड नहीं कर सकते स्लाइस से या पोजीशन देकर, इंडेक्स देकर। तो उस जगह पर हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपेंड फंक्शन कॉल करेंगे। फाइन। नाउ मेरे को पूरी लिस्ट क्लियर करनी है, सो आई एम हैविंग एन फंक्शन दैट इज numbers dot clear. So numbers is my list and dot I am clearing all items, so it will remove all the items from your list. So this is numbers dot clear. तो मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आया, दिस इज नल। फाइन। नेक्स्ट कम, आई एम कॉपिंग अ माई लिस्ट। सो मैंने एक लिस्ट बनाई a इक्वल्स टू 1 2 3। नाउ उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ b लिस्ट में, तो b इक्वल्स टू a। सो यहाँ मैंने प्रिंट करा b इक्वल्स टू, सो दिस इज 1 2 3। अगेन मैंने a को प्रिंट करा, तो मेरे पास आया 1 2 3। अब मैं b में
सेकंड पोजीशन पे आइटम ऐड कर रहा हूँ, मतलब इस आइटम को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया 99। तो मेरी बी को अगर प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी बी को, अब मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ तो भी मेरे पास क्या आ रहा है 1299, और बी को भी प्रिंट करवा रहा था 1299। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने इसका सिर्फ अलियास बनाया था, हमने एक लिस्ट बनाई थी, वो मेमोरी में अलोकेट हो रही है, दिस इज 129, है ना। हमने उसको पॉइंटर दिया, वो पॉइंटर ए इक्वल्स टू ए में किसकी लोकेशन जा रही है, जहां पे एक लिस्ट बनी थी 123। फाइन, समझना इसको, एक लिस्ट बनी, दिस इज 123, उसको एक नाम दिया, तो वो जो नाम था उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को होता है। तो जब उसको ए भी उसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइन, तो जब उसमें हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो वो सारे चेंजेस जो हैं, वो सारे चेंजेस हमको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जब हम उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में भी वो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके वैल्यू को अपडेट करा था, इंस्टेड कि हमने पर्टिकुलर अलग अलग लिस्ट को अपडेट नहीं करा था। तो जब हम a इक्वल्स टू बी या b इक्वल्स टू a कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर क्लिक कर रहे हैं, उस मेमोरी लोकेशन पर काम कर रहे हैं। कॉपी बनानी है, ये यहाँ पर a इक्वल्स टू बी या b इक्वल्स टू a जो है वो कॉपी नहीं बन रही है, वो सिर्फ एक पॉइंट को इसको कहीं मेमोरी अलोकेट हुई होगी, उस मेमोरी अलोकेशन को पॉइंट कर रहा है। डिफरेंस समझना, कॉपी नहीं बन रही है, दिस b इक्वल्स टू a नहीं हो रहा है, ये b और a दोनों जो है एक किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ये वही कंसेप्ट है जैसा c में पॉइंटर वाला कंसेप्ट होता है, तो b और a जो है दोनों किसी एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो एक जगह रिफ्लेक्ट करा तो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। फाइन, इतना समझ में आया? यस सर। ओके फाइन, Yes, sir. देन ठीक है, अब मेरे को कॉपी बनानी है, मेरे को अलियास बनाना है, मैं अभी मेमोरी लोकेशन पे नहीं जा रहा, तो अब मेरे को कॉपी बनानी है, तो मैं क्या फंक्शन करूंगा, c इक्वल्स टू a डॉट कॉपी। अब c इक्वल्स टू a डॉट कॉपी, अब मैंने सेकंड पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया और उसके बाद फिर प्रिंट करा, तो अब देखो यहाँ पर a और c बिल्कुल अलग अलग हो गया, है ना। पिछले केस में जब हम a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो किसी भी चीज में आप चेंज करोगे तो वो हर जगह पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं। फाइन, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक मैदान है, इस मैदान में मैंने बोला कि ये मेरा मैदान है, और उसके बाद मैंने उस मैदान में कुछ चीजें बना दी, सॉरी एक मैदान है, उस मैदान में कुछ रखा हुआ है। अब जैसे ही मेरा एक कोई दोस्त आया तो उसने बोला कि जो तेरा है वो मेरा है, तो दिस इज b इक्वल्स टू a, तो अब मैंने उसने आके उस मैदान में कुछ चेंज कर दिया, तो फाइनली क्या हुआ कि वो मैदान जो उसने चेंज कर रहा था और वही मेरा मैदान था, तो हमारी जो लोकेशन थी वो तो सेम थी, तो जो लोकेशन एक जैसी है तो उसमें चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, पर किसी ने आके उसकी कॉपी करी, मतलब वैसा के वैसे ही उठा के दूसरा कॉपी करके दूसरी मेमोरी लोकेशन पे बनाया, तो दिस a डॉट कॉपी फंक्शन जो है, दिस कॉपी फंक्शन जो है वैसा के वैसे ही उठाता है और दूसरी मेमोरी एलोकेट करता है। तो जब दूसरी मेमोरी एलोकेट हुई तो उसमें जो भी चेंज हुआ तो हमारी ओरिजिनल लोकेशन में चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज हियर वी आर डूइंग सेम थिंग ऑन सेम लोकेशन, we are operating some function on the same location while we are creating a alias or different copy of that particular list. So this is a difference between b equals to a and this is dot copy function. Now again, so I am saying that I am just an copy some items, so let's say d इक्वल्स टू, मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ, मैं स्लाइस से कॉपी कर रहा हूँ, एक और तरीका है, दिस इज कॉपिंग एन आइटम, सो मैं यहाँ पे स्लाइस से कॉपी कर रहा हूँ, तो d इक्वल्स टू फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन, मैंने स्टार्टिंग भी नल रखा है, एंडिंग भी नल रखा है, इसका मतलब मैं
स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा हूँ और एंड पर खत्म हो रहा हूँ, तो डी इक्वल्स टू अगेन डी इक्वल्स टू, फिर आई एम प्रिंटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये ए था 1 to 9, तो वैसा का वैसे ही मैंने प्रिंट डी करा, तो दिस इज 1 to 9, तो मैंने वैसा का वैसे ही कॉपी करा। देन मैंने फर्स्ट आइटम या सेकंड पोजीशन पे मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया, तो जैसे ही मैंने हेलो प्रिंट करा तो मेरा रिफ्लेक्ट बी डी में रिफ्लेक्ट हुआ, ए में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं जब बी इक्वल्स टू ए कर रहा हूं तो वहां पर क्या हो रहा है कि मेमोरी लोकेशन सेम है, सेम पॉइंट कर रहे हैं, पर जब मैं स्लाइसिंग यूज कर रहा हूं या डॉट कॉपी फंक्शन यूज कर रहा हूं तो वो हमारी अलग अलग कॉपी बना रही है। सो दिस इज द डिफरेंस। फाइन। नाउ अगेन, अब मेरे पास अगेन एक फंक्शन था, दिस इज लिस्ट डी, मेरे पास डी था, ये मेरे पास डी है। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट, सो दिस इज एन लिस्ट इक्वल्स टू डी, तो हमारे पास एक लिस्ट, हमारे पास ई आ गई, दिस इज 1 हेलो एंड 99। नाउ नाउ इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस ई नाम की एक लिस्ट में वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो ई नाम की वैल्यू में जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पर अगेन आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक दो तीन चार तरीके हैं। पहला तरीका जो है इक्वल्स टू फंक्शन करके यूज कर रहा हूँ, तो मेरी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। दूसरा तरीका कॉपी फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो अलग अलग एलियास बन रहे हैं। मैं स्लाइस यूज करके कर रहा हूँ तो भी अलग अलग एलियास बन रहे हैं। मैं लिस्ट फंक्शन यूज करके लिस्ट कॉपी कर रहा हूं तो भी अलग अलग एलियास यूज कर रहे हैं। जब इक्वल्स टू करके बी इक्वल्स टू ए करेंगे तो सेम मेमोरी लोकेशन होगी। बाकी जो तीनों ऑप्शन थे, दैट इज कॉपी फंक्शन, स्लाइसिंग और बाय लिस्ट फंक्शन, तो आपके पास अलग अलग लिस्ट बनेगी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे। फाइन। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. Okay, thank you. Then again I am just printing my original list, so let's say this is my list, print a, so this is I am printing a, so I don't have print, this is a. Then if equals to a, so I am again f equals to a, then I am appending 45 to a, then I am printing a, then again I am printing f। so हमने यहाँ पर तीन फंक्शन कॉल करें, मेरे पास यहाँ पर 45 वाला फंक्शन था। सो यहाँ मैंने मेरी लिस्ट प्रिंट करी, सो दिस इज माय लिस्ट, यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो यहाँ प्रिंट हो रही है। उसके बाद मैं जैसे 45 अपेंड कर रहा हूँ, काय में अपेंड कर रहा हूँ, एफ में अपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूज करा था एफ इक्वल्स टू ए, तो जो मैं एफ में अपेंड करूंगा वो सर्टनली ए में भी रिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पर मेरे अपेंड फंक्शन पे 45 हर जगह पर अपेंड हो जाएगा। फाइन। Now next function is counting the numbers of item in your list. So a particular item, so if you want to count the number of items in the list, you can use the length function that will count the number of items in particular in your list. Now you have to count a particular occurrence of certain element in your list, so what you can do is you will use a count function in this. So when you are using the count function in this list, you can just like I like to count this two item to in our list. So I'm just using list dot either you will provide a list, सो मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट बनाई नहीं थी, अदरवाइज यहाँ पे लेट से मेरी कोई लिस्ट होती ए बी सी, तो लिस्ट नेम डॉट काउंट, देन उसके अंदर आप जो आपका आइटम है वो आप प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ दिस इज स्ट्रिंग, सो आप उसको इन्वर्टेड कोट्स में प्रोवाइड करें। इन केस ऑफ योर इंटीजर, तो हमको वहां पर सॉरी ये कोट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट विल रिप्रेजेंट्स, तो हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ दिस टू, दिस ऑकरेंस इज 1 and this is 2, so it will return a value 2 over here. So it will count the particular entity in your list, and we like to count the overall number of items in the list, then we'll use the length function over here. Then again I am having a list, this is x equals to 1 2 1 1 2 1 1 2। now यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये एक लिस्ट है, x इज अ लिस्ट, इस लिस्ट में हमारे पास एक लिस्ट और है। तो फर्स्ट आइटम पे हमारे पास एक लिस्ट है, मतलब 0th पोजीशन पे हमारे पास एक लिस्ट है, देन फर्स्ट पोजीशन पे सिंगल आइटम है, सेकंड पोजीशन पे एक और आइटम है, देन थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक लिस्ट है, उस थर्ड पोजीशन के
फर्स्ट आइटम पे मेरे पास एक आइटम है, उस थर्ड पोजीशन के सेकंड पोजीशन पे भी हमारे पास आइटम है, देन उसके थर्ड पोजीशन के उस लिस्ट के थर्ड पोजीशन के थर्ड आइटम में फिर हमारे पास एक लिस्ट है. फाइन. सो दिस इज एन it contains number of list in this list. So I am just counting the occurrence of one. So I am counting the occurrence of one. So this is when I am counting the occurrence of one. So ये एक आइटम था तो यहाँ पे वन काउंट नहीं होगा. This is one and this is one. तो ये मेरे को काउंट कितना करके देगा? This is two. So it will represents a result two over here. Fine. समझ में आया ये? नहीं यस सर. ओके नहीं आया किसी को समझ में? वापस बताता हूँ. दिस इज अ लिस्ट. देखो ये एक ब्रैकेट ओपन हुआ, ये एक ब्रैकेट खत्म हुआ, मतलब ये एक लिस्ट हुई. ठीक है. अब इस लिस्ट में एक और ब्रैकेट ओपन हुआ, एक ब्रैकेट फिर क्लोज हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे एक लिस्ट और है ना. तो ये एक आइटम हुआ. अगर मैं एक्स में काउंट कर रहा हूं तो एक्स में ये काउंट कितना हो रहा है? दिस इज वन. देन दिस इज फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकंड आइटम, this is third item and this is fourth item. So this is fourth item. Fine. इस फोर्थ आइटम में हमारे पास एक लिस्ट है. इस फोर्थ आइटम के थर्ड आइटम में फिर हमारे पास एक लिस्ट है. तो आप हम क्या कर सकते हैं इस पे कि हम इसको रन करें, पॉसिबली रन हो जाए. इट टेक्स टाइम. इंटरनेट पे अगर एनाकोंडा चला रहा होता तो जल्दी आउटपुट आ जाता आपको. फाइन. तो व्हेन आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस इन दिस, सो मेरे पास रिजल्ट आ गया. फाइन. सो यहाँ पर मैं एक नया कोड इंसर्ट करता हूँ और आई एम जस्ट प्रिंटिंग आई लाइक टू प्रिंट एक्स वन आइटम हियर एंड आई एम अगेन प्रिंटिंग प्रिंट x of zeroth item. So it will print two different items. So let's say, so इसके x1 पोजीशन पे मेरे पास क्या मिल रहा है? 1. मेरे पास x0 पोजीशन पे क्या मिल रही है? एक और लिस्ट. Now again I am printing let's say print x3 एंड x3 का मैं अगर फर्स्ट आइटम ही उठाना चाहता हूं तो अगर ये 3 का मेरे पास फर्स्ट आइटम आ रहा है तो मेरे को 1 दे रहा है. आपको समझ में आ रहा है? दिस इज 1. आई एम प्रिंटिंग द सेकंड पोजीशन ऑफ दिस 3 2. सो इट विल अगेन प्रोवाइड अ लिस्ट दैट कंटेन्स 1 एंड 2. इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर. ओके. अब मैं काउंट कर रहा हूं. अब यहाँ मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास काउंटिंग में ये 1 है? नहीं है, ये तो एक लिस्ट है. ये 1 है, दिस इज फाइन. ये 1 है, 1 है. अब इसके अंदर मैं जा रहा हूं तो इस लिस्ट के लिए मैं एक्स की लिस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं अगर उसमें कोई इंडेक्स नहीं दे रहा हूं तो यहाँ पे ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है. तो अगर मैं काउंट करूंगा 1 तो 1 कितना देगा? ये 1 और ये 1. बाकी क्यों? क्योंकि ये तो एक कोई लिस्ट है जो अननेम्ड लिस्ट है. 1, दिस इज नॉट a 1. Fine. Now I am again finding the occurrence of 1 and 2. तो अब मेरे पास occurrence of 1 and 2 एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है. पर देखना ये वाला जो 1 and 2 का occurrence है वो अगेन एक लिस्ट के अंदर है. तो 1 and 2 आइटम जो है इसके अंदर, अब वो कुछ भी हो सकता है. तो मैं इस x के अंदर एक लिस्ट ढूंढ रहा हूँ 1 2. तो इस 1 2 में क्या हो रहा है? मेरे पास सिर्फ ये 1 2 आ रहा है. इसका occurrence एक 1 2 मेरे पास आ रहा है. फाइन. सो दिस इज एन आइटम. अगर इसके अंदर में एक और सर्च करना चाहता यहाँ पे तो देखें क्या आइटम आता है. फाइन. तो दिस इज अगेन दिस 1 2. अब ये नहीं मिल रहा क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 2 नहीं है तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा. फाइन. तो ये इस लिस्ट के अंदर, अगर इस लिस्ट के अंदर मेरे को सर्च करना होता तो मैं क्या करता कि मैं इस थर्ड आइटम पे जाता. इस थर्ड आइटम के अंदर मेरे पास कुछ होता तो क्या मेरे को 1 2 रिफ्लेक्ट करता? नहीं देता. क्यों? क्योंकि इसकी काउंटिंग में यहाँ पे ये 3 थर्ड पोजीशन पे 1 2 की इंडेक्सिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 2 की इंडेक्सिंग है तो इसमें काउंट नहीं कर सकता. अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको
ये इंडेक्स नहीं बनता। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ किस आइटम में, इस आइटम में। थर्ड आइटम के अंदर क्या मैं सर्च करूँ, मेरे को 2 1 मिला। हाँ, मेरे को इस थर्ड आइटम में, मतलब मेरा जो ये थर्ड आइटम था, वेयर इज माय थर्ड आइटम, दिस इज माय थर्ड आइटम, सो दिस इज माय थर्ड आइटम। इस थर्ड आइटम के अंदर 1 2 है, तो हाँ इस थर्ड आइटम के अंदर 1 2 है। सो इतना समझ में आया? दिस इज कॉम्प्लेक्स लिस्ट। सर हम्म सर जैसे हमने प्रिंट एक्स डॉट काउंट 1 करा तो उसमें सर उसने टोटल 2 बार 1 बताया, लेकिन अगर हमें पूरी लिस्ट में कितने 1 है, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट वाले 1 है वो सब अगर वैसे काउंट करना हो, तो उसके लिए कोई फंक्शन है क्या? उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, उसको हमको खुद का कोड बनाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ओके सर। क्योंकि उसके उसके लिए उसने ये मान के चला है कि ये तो एक लिस्ट है, उसके अंदर मतलब पूरा ही बिजनेस लॉजिक अगर आपको पाइथन लिख के दे देगा तो आप क्या करोगे? हमको ये नहीं पता ना कि डेप्थ कितनी आ रही है। यस सर। ओके, हाँ सर। देन सर इसके अंदर एक्सटेंडिंग अ जो लिस्ट। कर्ली हाँ, कर्ली सर ब्रैकेट नहीं होते, कर्ली ब्रैकेट नहीं है सॉरी अभी। राउंड ब्रैकेट्स जो लगे हैं सर, हाँ हाँ, वो एक वन को बता रहा है सर, या खाली जितने वन है उसके अंदर उस लिस्ट में वो बता रहा कहाँ पे मेरा कौन सा, मैं कहाँ पे है? आऊँ, इस पर आऊँ? हाँ, यस सर। ये प्रिंट। ये वाला। ये देखो, देखो हरेंद्र, मैंने सबसे पहले बोला था किसी वर्ड के आगे अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो एक फंक्शन है ना? तो दिस सर काउंट इज ए फंक्शन। इस काउंट में मैंने एक पैरामीटर पास किया। क्या पैरामीटर पास किया? 1। तो ये मेरे वन। को एक्स नाम की लिस्ट में 1 पैरामीटर को काउंट करके देगा। तो एक्स नाम की लिस्ट में 1 कितनी बार आ रहा है, तो ये 1 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे बना रहा है। यस और सर। कुछ? नहीं सर। ओके, थैंक यू। नाउ वी आर एक्सटेंडिंग अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के आगे पीछे दूसरी लिस्ट एक्सटेंड करते हैं। सो वी आर हैविंग अ फंक्शन एक्स ए डॉट एक्सटेंड बी। तो क्या होगा कि हमारे पास इसका फंक्शन, इसका मतलब ये होगा a इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमने पहले भी लिस्ट ऐड करी थी, तो पहले जब लिस्ट ऐड करी थी तो हमने लिखा था a प्लस बी। नाउ हम एक्सटेंडिंग कर रहे हैं, अगर मैं एक्सटेंड करता a के अंदर ही b ऐड करना है, तो या तो मैं लिख सकता था a इक्वल्स टू ए प्लस बी, या मैं लिख सकता था a डॉट एक्सटेंड b। तो b का आइटम x के अंदर आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हमने a प्लस बी करा और उसके आगे एंड कर दिया। मैं यहाँ लिखता बी डॉट एक्सटेंड ए, तो इसका मतलब ये होता है बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो हमारे मेरे पास आइटम आता है 5 7 9 देन 1 2 3। फाइन, नहीं, सो ओके। देन अब मैंने लिखा c इक्वल्स टू 1 2 3, देन ए 2 कॉमा लगा दिए, मतलब बीच में एक आइटम को लिखना छोड़ दिया। सो दिस इज एन एरर। तो आपको यहाँ एक आइटम लिखना पड़ेगा, या यहाँ पर से एक कॉमा हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, so this is a, again this is b, I am printing a plus b, so this is my a plus b. Now I am printing a, so again I am printing a. Then I like to add c equals to a plus b, so this is c equals to a plus b. It means that c equals to c जो हो रहा है, it reflects that a extend b. तो हमारा जो ये वाला फंक्शन था, this is a extend b, तो a extend b is equals to a equals to a plus b. फाइन। अगर मैंने यहाँ a प्लस बी करा है तो a में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमको कहीं ना कहीं कोई चीज किसी जगह स्टोर हो जाएगी जिसमें 2 लिस्ट मिलेगी। अगर मेरे को उसका आउटपुट स्टोर करवाना होता नए वेरिएबल में, तो मैं यूज करता है c इक्वल्स टू ए प्लस बी। या फिर मेरे को a के अंदर ही b ऐड करवाना होता, तो मैं या तो लिखता b इक्वल्स टू ए प्लस बी, या मैं लिखता a डॉट एक्सटेंड b. So this is the functionality of extend b. Now another way to extend a b, so what we can do is that a equals to length of a, then colon b. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्लाइसिंग से ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लेंथ फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ? लेंथ ऑफ फंक्शन मतलब मेरे को एक्सटेंड करना है, तो मैं कहाँ से ऐड करना चालू करूंगा स्लाइस में? कहाँ से? जहां पर a की लेंथ खत्म होगी। तो लेट से मेरी a की लेंथ कितनी है? 3। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? 3 से एंड तक। सो इट विल अगेन रिफ्लेक्ट योर a प्लस बी। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम इस लॉजिक में? नहीं, थैंक यू। हाँ है। सर बोलो हेलो। बोलो। हाँ सर बोलो। सर ये वापस हाँ, समझा दीजिए, दरअसल क्या हुआ कि किसी ने मुझे बाहर निकाल दिया था अभी। अच्छा, मैंने हाँ सर, एक्चुअली बार बार कोई बाहर निकाल रहा
वेट सर उस अटेंडेंस के टाइम ही बाहर निकालता है सर, जो उसके कारण अटेंडेंस में लग पाती है सर। रुक जाओ, मैं इसको मैप कर लूंगा। मैंने कल भी निकाला था क्या बाहर? सर कल तो आपने अटेंडी बना रखा था सर, अटेंडी अगर होते हैं ना तो कोई निकाल नहीं पाता है। एक्चुअली क्या था, मेरे को हरेंद्र को कुछ ऐड करवाना था, इसलिए मैंने उसको ऐड करवाया था। काइंडली वेट, मैं इसकी मीटिंग ऑप्शंस जो है मैं कल वापस चेंज कर दूंगा। या ओके सर। वेट करना, मैं इसके अभी रुको, मैं इसके ऑप्शंस में चेंज कर ही देता हूँ। शो मीटिंग नोट्स एंड मीटिंग, और काइंडली वेट। खैर अभी नहीं निकाल पाएगा, मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, वेट करना। सेटिंग, चलो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको कल अपडेट कर देता हूँ। फाइन। सो सर ये अटेंडेंस का सर देखना सर, ये लास्ट टाइम पे कोई निकालता है सर। वेट, लास्ट टाइम पे कोई निकालता है ना, कोई बात नहीं, वो लॉग में आ जाएगा मेरे पास कौन निकाल रहा है, तो देख लेते हैं फिर उसको। जिसने निकाला है वो रिफ्लेक्ट होगा, मेरे पास आ जाएगी उसकी पूरी लिस्ट कि किस किसने किसने किसको निकाला। फाइन, मेरे पास है उसकी लिस्ट। फाइन, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ a इक्वल्स टू लेंथ ऑफ a इक्वल्स टू b। तो मैं यहाँ पे जब स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो जब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं तो दिस इज a इक्वल्स टू, मैं एक लेंथ से स्टार्ट करना चाहता था। कहाँ से स्टार्ट करना चाहता था? जहां पर मेरा a खत्म हो। तो मेरे पास a में 3 आइटम थे, 0, 1 एंड 3rd पोजीशन। तो लेंथ ऑफ 3 क्या होगी? लेंथ ऑफ a कितनी होगी? 3 होगी। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करना चालू करूंगा? 3rd पोजीशन से। तो आई एम एक्सटेंडिंग फ्रॉम 3rd पोजीशन टू द लास्ट पोजीशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए। अगर मेरे को लेंथ पता है तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, अगर मेरे को नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट जनरलाइज में मैं लेंथ ऑफ ए पर काम करूंगा। नाउ अगेन गोइंग फॉर द इंडेक्सेस, now finding the particular position of an entity in your item list. So this is an let's say I am having a list name as knights. So knights equals to we are the, know, who, and say, and ni. So we are having 3 and 7 items available here. So I like to find the what is the index of who in this list. So what can I do is that I like to call the function index over here. So this index position then parameterized by the word that I want to find out, or the entity that I want to find out in the list. So it will reflect the position. So it will return the first position of that who in your list. So the position of who in a list is 0, 1, 2, 3 and 4. So it will return the first position where who appears in your list. So it will represent the position of list. Now insert at particular position. So I like to insert at particular position in your list. So I can use a function insert. So I like to insert 4 on the location 3rd. So this is it will come on the index of 3rd position. So this is it will appear on the 3rd location. So this is 0, 1, 2 and 3rd position. So 4 will be appear on the 4 will appear on the 3rd index on particular list. Then inserting with slice. So you can use inserting with slice that we have used in earlier today. So I will use 3:3. So this will insert at a particular location. Either you can use insert function or you can use slicing to insert at particular location. So it will reflect the same result in the both cases. Now I like to pop out some items. So आपने data structure तो पढ़ ही लिया है. So we are having item, this is push and pop. So we are having a list, so we can pop an item. So popping an item, it means that we are popping from the end. So we can pop it from the end. So when I'm not providing any particular item over here, any parameter here, so we can say that I am popping from the last. So it will give return the number that is popped out. So the output of this particular function is the number that will be popped out by using this function.
Fine. So it will not reflect the list. It will reflect the number that is being popped out from your list. Now, popping out from the particular position. So in case of popping out at a particular position, so you can provide the location as an parameter in the list. So let's say I like to pop out from the first position. So I'll call x.pop and the position 0 from your list. So it will pop out the first number 1 from your position. Then I like to pop out like from this position, so I will use x dot pop 1, so it will return 2 from your list. Now again जो मैंने पॉप करा था मैं उसको वापस ऐड कर दूं. So let's say I am having x equals to 1 2 3, then I am calling x dot pop. तो मैंने x dot pop में 3 पॉप करा और उसी को मैंने वापस अपेंड कर दिया, तो मेरी लिस्ट वो के वही बन गई. सो दिस इज x डॉट पॉप और x डॉट अपेंड. सो दिस इज एन कॉम्बिनेशन, तो इट विल रिजल्ट्स इन द सेम लिस्ट. दिस इज अपेंडिंग एंड पॉपिंग. फाइन. So or you can use pop and append over here. So this x dot pop gives me a number 3 and I am again